गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेंथ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, बाय डायरेक्ट मेथड्स और बाय इनडायरेक्ट मेथड्स. Direct methods are those methods in which we use a device to measure the length directly, like we use meter scale, we use measuring tape, we use vernier calipers, spherometer या स्क्रू गेज और समथिंग एल्स. यानी किसी भी डिवाइस को यूज करके जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, दैट वी कॉल डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. बट इफ वी मेजर द थिंग्स विद certain approximation, we are not able to use the direct devices, then such methods are called indirect methods. Like somebody asks you to what is time, you see your watch and tell him it is exactly 12 o'clock. So this is the direct measurement of time. But if somebody asks you about the time but you don't have the watch, then you will say it is approximately 11 to 12. So this is what the time may be exactly 12, maybe 11, maybe 11:30, maybe 12:30. Yani the measurement done by you is in the vicinity of the exact value, but not claim it the exact one. So this method is called indirect method. So let us see the methods of length measurement which are indirect. We have two different methods of length measurement. One type of method are for longer length and other type of methods are for shorter length. The common methods for measuring longer length are trigonometric method, sonar method and parallax method. Methods used for measuring shorter length are commonly Avogadro's method, Rutherford method and oleic acid method. Oleic acid method and parallax methods are in our course, so we will discuss these two methods here in class 11. The other methods you will study in higher classes. Oleic acid method. Oleic acid method is used to find the diameter of oleic acid molecules which are of quite larger than other liquids. The size of oleic acid molecule is around 10 times more than other liquids. These are of the order of nanometer. ये nanometer के order के होते हैं. How to measure the diameter using oleic acid method? This method based upon 5 different steps. We will study this method step by step. In first step, we prepare a solution of known concentration, say 1 by 400, 1 by 250, 1 by 500 or so, with oleic acid and alcohol. Alcohol और oleic acid का एक known concentration का solution बनाते हैं, यानी जिसकी concentration हमें पता होगी. Concentration 1 by 400 का means है कि 1 part of oleic acid is mixed with 400 part of alcohol. अगर मैंने ये concentration 1 by 500 लिया होता तो it would mean that 1 part of oleic acid is mixed with 500 part of alcohol. So this homogeneous solution we are going to prepare first. Second step, to take a container of known surface area, say A. हमने मान लिया एक कंटेनर हमने लिया है जिसका सरफेस एरिया A है. इसको पार्टली विद वाटर हम भर लेते हैं. इसमें पूरा किनारों तक पानी नहीं भरते, थोड़ा नीचे तक भरते हैं, यानी इसको थोड़ा सा अधूरा पानी से भरते हैं. नंबर 3 स्टेप, स्प्रिंकल अ फ्यू पिंच ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर ऑन इट. जो वाटर अभी हमने इस कंटेनर में लिया था इसके ऊपर हम कुछ चुटकी भर के लाइकोपोडियम पाउडर पिंच कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं. इसके लाइकोपोडियम पाउडर जो है वाटर के साथ जब जाता है तो ये इसके सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है. सरफेस टेंशन, बिकॉज वी नो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और ये अल्कोहल को इजीली डिसॉल्व कर लेता है. तो हम इसका सरफेस टेंशन बढ़ा देते हैं ताकि अल्कोहल को डिसॉल्व ना कर सके, ओलिक एसिड को अपने साथ डिसॉल्व ना कर सके. तो वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं. नाउ pour few drops of equal volume
ऑफ अबोव सॉल्यूशन, जो भी हमने 1/400 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया था ओलिक एसिड और अल्कोहल का, इसके कुछ ड्रॉप्स हम इस पानी के ऊपर छिड़कते हैं, ड्रॉप पोर करते हैं। सारी ड्रॉप का जो वॉल्यूम है करीब करीब इक्वल होगा, ऑल द ड्रॉप्स आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। हम इस तरह का ड्रॉपर लेते हैं जो इक्वल वॉल्यूम की ड्रॉप को पोर करे, और ये ड्रॉप हम तब तक डालते रहते हैं जब तक इस पानी के ऊपर एक बहुत पतली लेकिन यूनिफॉर्म फिल्म ना बन जाए। पतली इसलिए कि बहुत ज्यादा मोटाई हमें रखनी नहीं है, और यूनिफॉर्म यानी हर जगह हो, वो ऐसा ना हो कि कहीं फिल्म बनी कहीं नहीं बनी। तो तब तक हम डालते रहते हैं जब तक एक थिन और यूनिफॉर्म फिल्म इस पानी के ऊपर ना बन जाए। जैसे ही यूनिफॉर्म फिल्म बन जाएगी, वी स्टॉप पोरिंग द ड्रॉप्स। हमने मान लिया इस टोटल प्रोसेस में हमने n ड्रॉप्स को पोर किया, और हर ड्रॉप का जो वॉल्यूम था मैंने v डैश मान लिया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पोर्ड कितना होगा, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था इसको हमने कितना इसके ऊपर डाला, हमें पता v इक्वल होगा nv डैश नंबर ऑफ ड्रॉप्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इस ड्रॉप। बट इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना था, हमने बताया 1/400 पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड पोर्ड कितना हुआ, VO इक्वल टू V अपॉन 400 और NV डैश अपॉन 400। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, पहला हमने काम कर लिया। नाउ वी सेटल दिस होल अरेंजमेंट, यानी जो लाइकोपोडियम पाउडर, वाटर और ये जो सॉल्यूशन हमने पोर करके बर्तन में डाल रखा था, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं, रखा रहने देते हैं, जैसे 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट, ताकि जो भी अल्कोहल है सरफेस से इवेपोरेट हो जाए। हमें पता है कि जो अल्कोहल होता है वो वोलेटाइल होता है, और जैसे ही उसको हम फ्री छोड़ते हैं वो इवेपोरेट कर जाता है, तो वो थोड़ी देर में सारा अल्कोहल उड़ जाएगा, सरफेस से चला जाएगा। अब सरफेस पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड की फिल्म रह जाएगी वाटर सरफेस के ऊपर, और इस ओलिक एसिड फिल्म की मैंने मान लिया थिकनेस है T। द थिकनेस ऑफ दिस ओलिक एसिड फिल्म इज T। देन वॉल्यूम ऑफ द फिल्म कितना होगा, क्योंकि T थिकनेस की फिल्म A एरिया के सरफेस पर बनी है, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म होगा A इंटू T। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 VF इक्वल टू VO होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड पोर्ड, क्योंकि बाहर से कहीं कोई ओलिक एसिड आया नहीं है। यानी आई कैन से A इंटू T इक्वल्स टू NV डैश अपॉन 400, और यहां से T यानी थिकनेस ऑफ द ओलिक एसिड फिल्म क्या होगी, NV डैश अपॉन 400 multiplied by A. This is the thickness of oleic acid film. If film is sufficiently thin, then the thickness of film will be equal to 1 particle diameter. क्योंकि जब मैं एक सरफेस के ऊपर फिल्म बनाता हूं तो मैं मान लिया सबसे पतली फिल्म कब बनेगी, जब ओलिक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल ही फिल्म मेकिंग में बिजी हो। तो इसका मतलब थिकनेस ऑफ फिल्म जो है डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वही थिकनेस ऑफ फिल्म भी होगा। तो दिस इज व्हाई वी कैन से डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमीटर ऑफ OA मॉलिक्यूल इक्वल टू थिकनेस ऑफ फिल्म, और वी कैन से डायमीटर D इक्वल टू हो जाएगा NV डैश अपॉन 400 इंटू A। अगर मैंने यहां पर कंसंट्रेशन 1/500 लिया होता तो 400 की जगह 500 आ जाता, अगर मैंने 250 लिया होता तो बाई 250 आता। तो दिस इज द मेथड, बट दिस मेथड इज एन एरर प्रोन मेथड। इस मेथड में गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि अगर जब मैं ड्रॉप पोर कर रहा था, एक ड्रॉप की बजाय मुझे आधे ड्रॉप की जरूरत थी। सपोज जब मैं फिल्म बना रहा था स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 4 में, तो उस टाइम जहां मैंने 3 ड्रॉप पोर कर ली और मुझे आधे ड्रॉप के बाद एक यूनिफॉर्म फिल्म मिलने वाली थी, लेकिन ऊपर से तो एक पूरी ड्रॉप आएगी, यानी वो जो हाफ ड्रॉप है वो एडिशनली कहीं ना कहीं लेयर को मोटा कर देगी, थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड फिल्म इससे अफेक्ट होगी। या सपोज करें कि मुझे लगा कि फिल्म को चाहिए था 3.25 ड्रॉप्स यानी 3.15 ड्रॉप्स, बट मैंने 3 डाल के छोड़ दिया, यानी कुछ हिस्सा रह गया जहां पर फिल्म नहीं बनी। तो दिस मेथड इज एरर प्रोन मेथड। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। लेंथ मेजरमेंट के 2 मेथड मैंने बताए थे,
एक होते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। इस अप्रोक्सीमेट मेथड की वजह से हम जो ओलिक एसिड का फिल्म बनाते हैं, इससे ओलिक एसिड डायमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। टू मेक इट लेस एरर प्रोन वी टेक द कंसंट्रेशन एज लो एज पॉसिबल। मैं 1/100 का कंसंट्रेशन ले सकता था, मैं 1/50 का कंसंट्रेशन ले सकता था, लेकिन उस केस में ओलिक एसिड मेथड बैडली अफेक्ट होता है, उसका जो एक्यूरेसी है बहुत हद तक अफेक्ट होती है। तो टू इंक्रीज, आपसे पूछा जाता है व्हाई शुड वी टेक द लो कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल एंड ओलिक एसिड सॉल्यूशन? आंसर इज टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, बिकॉज जितना लो कंसंट्रेशन होगा उतना इस मेथड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ओलिक एसिड मेथड, होप यू गॉट इट। नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लॉन्गर लेंथ मेजरमेंट। लॉन्गर लेंथ मेजरमेंट के 3 इनडायरेक्ट मेथड बताए थे। पहला था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, दूसरा है सोनार मेथड और तीसरा है पैरेलैक्स मेथड। तो वी विल डिस्कस पैरेलैक्स मेथड हियर। Parallax method is a method that is used to measure the distance of very distant stars and other celestial bodies. This is an approximate method. It gives us the approximate distance. What is parallax first? Let us see what is parallax. Parallax is the relative shift in the position of an object when seen through two different observation points. Parallax is the relative shift in the position of an object when seen through two different points with respect to a fixed background. The distance between the two observation points is called basis, and for more accurate results, basis should be large. How to find parallax yourself? Do one thing: close one of your eye, hold a pen in front of your eye and just choose a point on the wall or some background in front of you. किसी भी वॉल पे, किसी बोर्ड पे, किसी कॉपी पे, कहीं भी आप एक फिक्स बैकग्राउंड कर ले without moving your head. Just close one eye and try to hide this point with this pen. Now without moving the pen or without moving your head, try to open the other eye closing the first one. You will see the point that you have hidden earlier has come out. So this shift in the position of this point is called parallax. एक बार फिर, आप अगर किसी पॉइंट को अपने पेन की हेल्प से, अपनी फिंगर की हेल्प से एक आंख बंद करके हाइड कर लेते हैं, तो विदाउट मूविंग योर फिंगर, विदाउट मूविंग योर पेन, ऑल्सो विदाउट मूविंग योर हेड, अगर आप दूसरी आंख ओपन करें और पहली आंख को बंद कर ले, तो आपको दिखेगा कि वो पॉइंट हाइड से बाहर आ चुका है। इट मींस ये जो शिफ्ट हुई इसकी पोजीशन में, दैट वी कॉल पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है अगर दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लार्ज हो। यहां पर हमारे जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमारी 2 आंखें, तो 2 आंखों के बीच की डिस्टेंस यहां पर हमारे पास बेसिस कही जाती है। बट अगर दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर दूर हो, लार्जर बेसिस हम ले लें, तो दिस इज गिव द क्वाइट एक्यूरेट रिजल्ट्स। नाउ सी व्हाट इज द मेथड, हाउ मेथड इज देयर। लेट अस सपोज ए स्टार इज एस। जिस स्टार की मैंने डिस्टेंस नापनी है, ये स्टार है एस, और किसी बैकग्राउंड स्टार, जो एक बैकग्राउंड में पीछे स्टार है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको मेजर करना है। So let us suppose a star S is being observed from 2 different points A and B, separated by a small distance B, जिसको मैंने बेसिस का है, small distance B से इनको दोनों को सेपरेट किया हुआ है, and with respect to a fixed background star S dash, using an angle measuring device called sextant, we measure the angle from A and from B between S and S dash। कैसे? हम सेक्सटेंट, एक लकड़ी का डिवाइस होता है, जैसे हमारा कंपास होता है, उसी तरह का 2 आर्म होती है, उस पे एक एंगल मेजरिंग प्रोटेक्टर लगा होता है। एक आर्म मैंने पॉइंट कर ली एस की तरफ और एक आर्म पॉइंट कर ली एस डैश की तरफ।
एस और एस के बीच में मैंने एक एंगल मेजर कर लिया, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा 1। इसी तरह से पॉइंट बी पर जाकर मैंने एंगल मेजर किया, दैट इज थीटा 2। अगर मैं देखूं दोनों एंगल थीटा 1 और थीटा 2 जो है एक एंगल, जो सेंट्रल एंगल है हमारा थीटा के इक्वल हो गया, यानी थीटा इक्वल टू थीटा 1 एंड थीटा 2। अब मैं मान लेता हूं कि दोनों पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार एस इज d1 एंड d2। let d1 and d2 be the distance of s from a and b. Since s is quite distant, हमने मान लिया क्योंकि s की जो डिस्टेंस है वो काफी दूर होती है, लाइट ईयर्स के अप्रोक्स ये डिस्टेंस होती है, जबकि अर्थ पर जो हमारी डिस्टेंस है, जो बेसिस है, दैट मे बी ऑफ फ्यू हंड्रेड फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स। तो यानी ये जो डिस्टेंस b है एज कंपेयर टू d इज वेरी लेस, so we can say approximately say d1 is approximately equal to d2 and that we call d। यानी d1 और d2 का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट a और b के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और d की डिस्टेंस जो यहां से मैं स्टार की डिस्टेंस कहूं वो बहुत ज्यादा है। तो वी कैन से एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो मेरे पास एक ट्राइंगल बनता है, इसमें आर्क है b और रेडियस है d, तो आई कैन से थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। और यहां से मुझे निकालना था डिस्टेंस, यानी डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। यही है हमारा पैरेलैक्स मेथड, और इसी पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार, दैट इज द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्टिक सेकंड इसी तरह से एग्जिस्टेंस में आया। द रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट इफ basis is large and on the earth the largest possible basis is the two poles, separation between two poles, double of radius of earth, यानी हम कह सकते हैं equal to diameter of earth। एक ऑब्जर्वेशन में नॉर्थ पोल पे लेता हूं तो दूसरा ऑब्जर्वेशन साउथ पोल पे लेता हूं। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल basis on the earth। if I go outside the earth, then earth moves around the sun in an elliptical path separating 2 AU on the span of 6 months। एक बार जब अर्थ की मैं बात करता हूं, सन के अराउंड घूमती है, दिस इज द सन। जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो एक टाइम यहां पर है, एवरेज डिस्टेंस है 1 AU, और दूसरी तरफ है पॉइंट बी पर, तो ए और बी यहां पर भी हो सकते हैं 1 AU यानी अप्रोक्सीमेटली 2 AU का मुझे गैप मिल जाएगा। तो लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। तो द लार्जेस्ट पॉसिबल बेसिस मे बी 2 AU व्हेन अर्थ इज ऑन द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑफ इट्स ऑर्बिट। डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन ऑफ अर्थ हम चूज करते हैं, और ये अपोजिशन पॉइंट्स जो है करीब करीब 6 मंथ के गैप पे आते हैं, क्योंकि इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ अर्थ कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स राउंड। तो एक पॉइंट अगर सन के इस तरफ था तो दूसरा पॉइंट सन के उस तरफ हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सेपरेशन विल बी 2 AU। तो दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल basis on the earth. So the parallax method will be more accurate if largest possible basis we will choose. The largest possible basis I have told you 12,800 meter, 12,800 kilometer on the earth from the two poles, and about 2 AU after a span of 6 months from two diametrically opposite points of earth orbit. So this is all about the methods of length measurement. Thank you for watching. Have a good day.